Hello students of class 7, how are you all Student, I am a science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Student, as you know, chapter 10 that is the chapter 11 that is reproduction in plant is under process. So in which I have explained you about the vegetative mode of reproduction that comes under asexual mode of reproduction. Further, I am going to explain the different layering, grafting and cutting method of artificial method of reproductions. So let's start student. So students, as in my previous video, I have explained you about the artificial method of vegetative reproduction in which I have explained you about such plant that touches the ground layer. As you can see here, the plant whose branches touches here, and as it touches the surface, ground surface, they start arising roots, and as plant start arising coming out from that portion. So this type of plant that touches the ground surface, and from there the roots start arising and a new plant start arising there, that type of method of this is also a method of reproduction which is done by a mode of asexual mode of reproduction, and this method is called the layering. Student, this method is called layering. So in case of layering, lower branches of a plant is bent down and covered under the thin layer of moist soil by pushing the tip into the ground, soft ground. After some time, root develops and the plant forms a new plant. This is known as the layering. So student, this is known as layering. These plants can be separated out and can be grown as a separate plant. Such a mode of reproduction is taken in the plant like bougainvillea. Okay student, bougainvillea, jasmine and rose. These are certain plants like bougainvillea, jasmine and rose. Okay. Next one, grafting. Grafting is the another mode in which suppose a plant is there. Okay, these are two plants standing here, same species plant. It has been cut. Okay, the upper part of and the upper part is removed. The upper part is removed. So you can see here the upper part is removed, and now the upper part of this plant it's it's put above this plant. Okay, so here it is put, and the upper plant part of this plant is put above this plant, and they both here what you can say moist mud is mud is just put around this cut portion, and it is tied by a rope, and daily or you can say time to time you will give water to this portion, and after some time you will see that the portion they both have joined, the together has joined together. So this is called the grafting method. A small branch of plant is tied with the cut stem of the rooted plant of the same type. The joint is covered by a layer of wax or clay. After a few days, the two become untied, and the two when you will untie, you will see that both have become that they both have joined together. दोनों पौधे आपस में जुड़ चुके हैं और एक नए प्लांट के रूप में वो इसकी मतलब नया प्लांट बन जाएगा. द रूटेड प्लांट विद द रूट
the shoot plant with the root system under the soil is called the stalk. So जिस पौधे का नीचे वाला पोर्शन जो ज़मीन पे ही रह गया, ज़मीन से जुड़ा ही रह गया, उसे स्टॉक कहते हैं। और जो उसका अपर का पोर्शन जो लगाया गया उसको जोड़ने के लिए, उसको स्क्योन कहते हैं, स्क्योन। ओके स्टूडेंट, तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। और ये मेथड किस किस टाइप के पौधे में किया जाता है स्टूडेंट? मैंगो, लेमन, रोज़ प्लांट में इस तरह की टेक्निक अपनाई जा सकती है। अगर इन पौधों में अगर हम दो अलग अलग अगर सेम स्पीसीज़ के पौधे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मैंगो प्लांट है, एक और मैंगो प्लांट है, सपोज दैट दोनों ही मैंगो प्लांट है, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी अलग अलग है, इन दोनों की क्वालिटियाँ अलग है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा नया थर्ड प्लांट तैयार करें जिसमें इस दोनों प्लांट का मिक्सचर हो, इस दोनों प्लांट का मिक्सचर हो। तो हम इसके हाफ पार्ट को और इसके हाफ पार्ट को काट के दोनों के पार्ट को एक्सचेंज कर देंगे, और एक्सचेंज करने से दोनों की खूबी एक ही पौधे में आ जाएगी, जिससे कि एक ऐसा नया पौधा क्रिएट होगा जिसमें दोनों अलग अलग जो पौधे में खूबी थी वो एक ही पौधे में आ गई। दिस स्टूडेंट मेथड ऑफ such type of reproduction is called grafting. Now next student, cutting. This is the cutting. This is very common method to grow rose plant. कटिंग में अधिकांशतः रोज़ प्लांट को ही लिया जाता है, और शुगर केन को भी ले सकते हो आप। तो ये कटिंग जो है एक वेरी कॉमन मेथड है टू ग्रो रोज़ प्लांट और शुगर केन प्लांट। A small cutting of stem or stem piece is cut, taken and placed in the moist soil. उसको गीली मिट्टी में आप गाड़ दो। After a few days, कुछ दिनों बाद, this stem gives rise to a root and form a new plant. उसमें से नए जड़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और नए प्लांट का रूप ले लेगा। The study to study vegetative propagation reproduction by means of cutting. So student, you can see here, cut a branch of rose विथ अ नोड, मीन्स एक ब्रांच की टहनी को आप काटो जिसमें नोड्स हों। ओके, कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज विथ अ नोड्स, दिस पीस ऑफ ब्रांच, सो कट अ ब्रांच ऑफ रोज विथ अ नोड, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज कटिंग। नाउ बरी द कटिंग इन द सॉइल, अब उस कटिंग को आप मिट्टी में डाल दो। द पार्ट हैविंग द नोड इज केप्ट अबव, जिसमें नोड्स है, नोड्स वाला पार्ट को ऊपर ही रखिए, मिट्टी से थोड़ा ऊपर साइड में रखिए। वाटर द कटिंग एवरी डे, हर रोज उसमें पानी डालिए। एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद उसके अंदर आपको विकास नजर आएगा, ग्रोथ नजर आएगा। What changes do you observe in this growth? After a few days, the end of cutting buried in the soil developed roots. कुछ दिनों बाद जो कटिंग वाला पोर्शन आपने जमीन में गाड़ रखा था उसमें से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, द बड डेवलप्स इनटू शूट, और बर्ड्स के पास से शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय कटिंग मेथड। मनी प्लांट को भी हम कटिंग मेथड से ग्रो करा सकते हैं। वी कैन ग्रो मनी प्लांट बाय कीपिंग द स्टेम कटिंग ऑन अ जार ऑफ वाटर। पानी में भी हम मनी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस ढंग से किए गए रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट, क्या बेनिफिट होता है? आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट सम ऑफ द प्लांट सच एज बनानाज विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एट ऑल। ओके, जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड कभी नहीं, मतलब उनमें फूल लगते ही नहीं, तो सीड कहाँ से, मतलब कि उसमें ऐसे पौधे जिसमें सीड के कभी आसार ही नज़र नहीं आते, इसमें कभी सीड हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये चिंतनीय विषय हो जाएगी, आखिर जिस पौधे में सीड नहीं होगी तो फिर कैसे उन पौधों का नया प्लांट तैयार होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी सामने। पर आप बनाना का केस ले लो, केला के पौधे जो होते हैं उन पौधों में, उनके फ्रूट्स में सीड नहीं होते हैं, तो फिर आखिर ये पौधे कैसे
नए प्लांट का रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों में भी उसके स्टेम पार्ट को काट के अगर हम ज़मीन में गाड़ दें तो एक नया प्लांट का रूप ले लेगा। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन वाली मेथड नहीं रहती, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली टेक्निक नहीं रहती संसार में, तब शायद बनाना का नया पौधा हमें देखने को नहीं प्राप्त होता। तो ये एक लाभ है, ये एक बेनिफिट है कि ऐसे पौधे जिसमें सीड नहीं होते, वो इस माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक लेस टाइम फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट एज इट डजंट इन्वॉल्व जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से किए जाने वाले रिप्रोडक्शन का कार्य में ये पौधे जल्दी बड़े होते हैं, क्योंकि इनको हम सीड के टाइमिंग से तो उगा नहीं रहे, सीड से तो उगा नहीं रहे, इनको हम डायरेक्टली एक बेबी प्लांट, एक नर्सरी प्लांट की हेल्प से उगा रहे हैं, या तो उसके रूट से या तो उसके स्टेम से। ये ऑलरेडी ग्रोन अप मीन्स कंडीशन में है, केवल इसको थोड़ा सा केयर करेंगे तो एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो इसलिए इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड से उगाए जाने वाले पौधे में का ग्रोथ रेट सीड के द्वारा उगाए गए पौधे के ग्रोथ रेट से कहीं फास्टर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन सम केसेस वेयर द सीड प्रोड्यूस आर नॉट वायलेबल और फिट एंड कैनॉट फॉर्म अ न्यू प्लांट, देयर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड। थर्ड केस स्टूडेंट, कोई ऐसा पौधा इसमें सीड तो हुआ, सीड उसने दिया, पर उसके सीड उस कंडीशन उस लायक नहीं है कि एक नए हेल्दी प्लांट को वो जन्म दे सके। तो इन दैट केस ऑल्सो, ऐसे कंडीशन में भी ये वेजिटेटिव मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा और बेनिफिशियल भी होगा। द न्यू प्लांट फॉर्म थ्रू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। और वेजिटेटिव प्लांट से जो रिप्रोडक्शन का कार्य किया गया, उनसे जो पौधे होंगे वो सेम टू सेम उनके पेरेंट के जैसे ही होंगे। If the plant with similar qualities as that of the parents are required, उनके जो पेरेंट्स में जो क्वालिटीज़ होंगे वही क्वालिटीज़ उस वेजिटेटिव माध्यम से उगाए गए पौधे में भी वही क्वालिटीज़ होंगे। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ द बेस्ट मेथड ऐसे पौधे के लिए जिनमें फ्लावर नहीं होता है, जिनके सीड्स उस कैपेबल नहीं होते हैं कि न्यू हेल्दी प्लांट को ग्रोथ करा सकें, या जिसमें सीड नहीं होता है, ऐसे पौधे भी हो सकते हैं। पर कुछ कमियां भी होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में कुछ कमियां होती हैं। वो कौन सी कमियां होती हैं स्टूडेंट? लेट्स सी दैट। सिंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। चूँकि इस माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जैक्ट सेम टू सेम पेरेंट की तरह उसका एक कॉपी तैयार होता है। मतलब जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी सेम टू सेम इसमें भी वही पाई जाएंगी। पर अगर सीड के द्वारा उगाया था तो हम सीड के द्वारा पहले से ही केवल हेल्दी बीज को ही, हेल्दी सीड्स को ही हम सिलेक्शन करते, और उससे जब प्लांट उगाते तो वो भी हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री होता। पर अगर सेम टू सेम प्लांट के बॉडी से ही कटिंग करके नया प्लांट उगाया गया है तो सारे what the disease is there in the parent plant, same disease will acquire in that child, in that baby plant which is grown by the help of vegetative reproduction। ये फर्स्ट कमी है कि ये अगर सीड से हम पौधे को उगाते तो उसमें शायद हमें चांस मिलता, मौका मिलता केवल अच्छा सीड को सेलेक्ट करके अच्छे पौधे उगाने के लिए, ताकि हम जब डिजीज़ वाले सीड्स नहीं सो करेंगे तो पौधे भी डिजीज़ फ्री होंगे। पर यानी सीड के केस में हमें मौका मिल रहा है कि डिजीज़ को हटा के अच्छे सीड्स को सिलेक्शन करके, ताकि हम केवल और केवल अच्छा पौधा को उगा सकें। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, हमें एक मदर प्लांट से उसके अंदर की कमियों को या उसके अंदर की डिजीज़ को छांट के निकाल के फिर उसको लगाएं, ऐसा उसमें कोई तरीका नहीं होता है।
कि उसकी फ़ोटोकॉपी सेम उसके अगर स्टेम से बनाया गया या लीफ से या रूट से, तो जो अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी उस मदर प्लांट में होगी, सेम टू सेम वही क्वालिटी इस बेबी प्लांट में भी आएगी। ये कमी होती है। So, since vegetative reproduction produces an exact copy of the parent, some undesired qualities of the parent plant also passes to the plants of a new generation. Next one, all plants are vulnerable to the same disease. अगर एक मदर प्लांट में कोई डिजीज़ है तो उस मदर प्लांट के बॉडी पार्ट से उगाए जाने वाले सारे पौधों में वो डिजीज़ फैलेगी। जर्म्स कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू द ऑफस्प्रिंग। और अगर एक पौधे प्लांट में कोई सी मदर प्लांट में जर्म्स है तो उससे उगने वाले जितने पौधे होंगे सबके अंदर वो जर्म्स जो है ट्रांसफ़र होगी। तो ये कुछ डिमेरिट्स, यू कैन से डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द बडिंग। व्हाट इज बडिंग? इन बडिंग a tiny bulb bulges. So in budding, suppose a plant is here, a small bulging arises, and now this bulging grows on becoming a big one, and after that from here it breaks and falls down. The mother is plant is there, and this baby after budding falls down, and after sometimes it also grow to become a mature, and again a bud coming out from it also. So in budding, a tiny bulb-like bulge produced known as the bud emerges from the parent body. This bud eventually gets separated from the parent plant. ये buds साइड से ग्रो करता है और पेरेंट प्लांट को की तरफ बन जाता है, न्यू पेरेंट प्लांट की तरफ बन जाता है। द न्यू प्लांट्स ग्रो अटेन्स द मैच्योरिटी एंड फाइनली प्रोड्यूस बर्ड्स। और फिर से वो नया प्लांट मैच्योर होता है और उसमें भी बर्ड निकल आते हैं। लाइक दिस ईच बर्ड ट्रांसफर, और हर बर्ड एक न्यू प्लांट को का शेप एक्वायर कर लेता है एंड फॉर्म्स बर्ड, और फिर से वो एक नया बर्ड तैयार करता है जो फिर से एक नया प्लांट का रूप लेगा। एंड और ये प्रक्रिया चलती रहती है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। सो ईस्ट फॉर्मेशन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। So student, yeast formation is a common example of budding. Yeast is a single-celled or unicellular organism. It is non-green plant and can only be seen under a microscope. So student, yeast formation is a common example which is budding. By the method of budding, it is a single-celled or unicellular organism. It is a non-green plant and can only be seen under by a help of the microscope. A bud develops on the body of yeast. Next, in case of yeast, the bud develops. The nucleus divides into two parts, and one part moves into the bud. The bud grows in and gets separate from the parent plant, forming a new yeast cell. If favorable conditions and enough nutrients are provided, then bud formation occurs so fast the first bud start forming its own bud. मीन्स अगर सब कुछ कंडीशन ठीक रहा, फेवरेबल कंडीशन रहा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी सही से मिल रहे हैं, तो वो बर्ड फिर अतिशीघ्र फिर से वो बर्ड जो है अलग होकर एक नया पेरेंट बन जाएगा और वह एक नए बर्ड को फिर से जन्म देगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लाइकवाइज ऑल द न्यू बर्ड्स रिमेन कनेक्टेड टू द पेरेंट ईस्ट। और जितने भी बर्ड्स निकलेंगे वो जब तक वो छोटे होते हैं तब तक अपने पेरेंट ईस्ट से सटे होते हैं, जुड़े होते हैं, और फिर वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नया मैच्योर ईस्ट बनते हैं, और वह उस मैच्योर ईस्ट में फिर से एक नए बडिंग निकलते हैं, और वो बडिंग फिर से एक नए इंडिविजुअल तैयार होते हैं। फाइनली ऑल द बर्ड्स ऑफ द चेन डिटैच फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म्स इंडिविजुअल। और फाइनली हर बर्ड अपने मदर प्लांट से हट के अलग होके एक मैच्योर इंडिविजुअल तैयार होता है। सो इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस। और ये प्रक्रिया अगर चलती रही तो ज़्यादा पैमाने पे ईस्ट सेल तैयार होंगे। स्पॉन्जी एंड हाइड्रा आर ऑल्सो डू द बडिंग। और स्पॉन्जेस और हाइड्रा ये भी दोनों बडिंग के माध्यम से ही जनरेट होते हैं। यू कैन सी हियर द फिगर स्टूडेंट हाउ this is an yeast in which here you can see budding start coming out, then this budding is start arising, then many birds are here, you can see many birds are here,
and each and every birds will separate to form a new individual. Now student, in coral and sponges, in a plant like coral and sponges, birds do not separate out but remain attached with the parent body and reproduce again and again, producing a colony. But in case of sponges, student, and coral, the birds do not separate. वो उसके शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है और उसी में डेवलप करते जाता है. Now come the next topic about the spore formation. You can see here this is a spore formation. This is a hydra plant, student, hydra. Okay, these are the spores you can see here, and when this spore will fall, a new plant will start arising. So here spore are not seed. Actually student, these spores are not actually seeds. A spore is a tiny स्पेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी, छोटा सा गोल आकार का सिंगल सेल वाला बॉडी है जिसके ऊपर एक थिक कवरिंग होता है, थिक वॉल, इन लार्ज नंबर ऑफ फंजाई. अधिकांशतः फंजाई में सच एज ईस्ट वाला फंजाई या ब्रेड माउल्ड वाला फंजाई जो होते हैं, ब्रेड माउल्ड्स, एंड फ्लावरलेस प्लांट, और कुछ ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं जैसे कि फर्न और मॉसेज. स्पोर्स ऑफ फॉर्म, ऐसे पौधों में स्पोर लगते हैं उसके आउटर पार्ट में, फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट बॉडी दैट जर्मिनेट टू गिव यंग वंस, जिनसे जो जर्मिनेट करके बहुत सारे नए यंग वंस को पैदा कर सकते हैं. वंस द कंडीशन ऑफ फेवरेबल, एक बार जब सही उनको क्लाइमेट कंडीशन मिला तो ये स्पॉन्जेस, स्पोर्स जो होते हैं, द स्पोर्स आर, उनकी जो अपर कवरिंग होती है वो खुल जाती है और उनसे नए प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. दीज स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, और ये स्पोर्स जो हैं बहुत छोटे बॉडीज होते हैं, कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जिसकी एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से उसकी पूरी बॉडी ढकी होती है, दैट हेल्प देम टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर. और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से वो उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर अत्यधिक हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी के अंडर में वो जिंदा रहते हैं. स्पोर्स रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ रेस्टिंग स्टेट. स्पोर्स एक तरह का रेस्टिंग स्टेट है जिसके आउटर कवरिंग के अंदर वह बेबी प्लांट स्टोर्ड है, और जैसे उस बेबी प्लांट को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, स्पोर्स ब्रेक्स ओपन, तो उसके ऊपर की स्पोर की अपर की कवरिंग ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से रिलीज द सेल टू ग्रो, उसके अंदर से नया सेल निकलता है टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली, जो कि आगे चल के ग्रो करके एक नॉर्मल प्लांट के रूप में कन्वर्ट होता है. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द in the yeast how the budding takes place. I have explained about the disadvantages of the vegetative reproductions, and I have explained about the advantage of reproduction. Then I have repeated the reproduction by the method of cutting, by the method of grafting, and by the method of layering. So student, meet you in the next video. Till then, thank you student, have a nice day.